Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Ping others also on the group so that they join quickly and we start the classes. अभी तो काफी लोग रहते हैं to join. Yeah, quickly drop a message एक बार so that all others join quickly. All set, ready? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So let's begin. Welcome to this session. This is a rank booster program. इसका नाम ऐसा इसलिए रखा है so that you realize what is the objective of doing these classes. Today we will not get too much into the portal details because that I'll take offline. All you need to do is be ready with your microphones and better with the microphones in headphone form so that voice distraction ना आए. The topics जो list में जैसे mentioned हैं, we will go ahead with the same flow. It would be a bit fast because we have to cover the entire 11th syllabus. याद दिलाना है तुम्हें what you have done, where you are stuck with, and thereafter I will introduce you to the online test series and all offline एक कल परसों में किसी दिन so that you realize कि कहाँ क्या रखा हुआ है. ठीक है? So the first topic, first chapter जो दो classes में we have to cover is basically quadratic equations and inequalities. Quadratic equations and expressions, या यूं कह लो quadratic equations and inequalities. Class 11th में डिटेल में किया था. If I remember, you have done this with me also. Now let's quickly start in terms of quadratic equation. I may ask certain question तुम में से कुछ लोगों से बीच में where you will have to answer. Otherwise, it would be primarily a one-way flow. ठीक है? The basic understanding is that any equation of the form a0 plus a1x plus a2x square and so on up to an x to the power n is equal to 0 is basically called as a polynomial equation. And this polynomial equation doesn't have any restriction of ai to be real numbers, but yes, if the coefficients are real, then we call this as a real polynomial. If ai are complex number, then also certain results hold true. So we begin with what is a real polynomial. So any equation which is not an identity, an equation of this particular form is basically a polynomial equation. First thing first. Second, how do we define zeros or roots of a polynomial? So those values of x जो इसको satisfy करें
they basically are called as zeros or roots. किसको satisfy करे? That satisfy the equation. Is that okay? Now the first important statement, any equation of degree n will have exactly n roots. याद है ये? We had done it earlier. Exactly n roots. If it has n plus 1 or more roots, then it is an identity. Garvit, is this clear? Yes, sir. Because in an identity, the number of values are infinite जो उसको satisfy करेंगे. Now, using this small fact, we at times in JEE mains and equally competitive exams create certain questions. एक try करते हैं उसमें से. Let us see how you understand this question. पहले भी कराया हुआ है, but we'll change the structure. If x square a minus b times x square plus b minus c times x plus c minus a is equal to 0 has two distinct roots in the interval 0 to 1 open, then a cube plus b cube plus c cube upon a b c is equal to. Quickly find out the solution. क्या है? And then मैं जिससे बोलूं वो बताएगा. Jatin. Jatin. Anurag has. Yes, Anurag. Yes, sir. क्या होगा इसका आंसर और क्यों? सर बस एक सेकंड सर, बस एक सेकंड. आशीष. गर्वित. एक मिनट सर. हैंड रेस करो जिसको जिसको पता है. those who have done it. सानिध्य बोलो. सर इसका आंसर 9 होगा, क्योंकि सर जैसे दे रखा है ना 0 into 0 और 1 में दे रखा है, तो एक रूट तो 1 हो ही गया, सॉल्यूशन हो ही गया. तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ए कर देंगे. फिर आइडेंटिटी पता है उसमें डाल देंगे वैल्यूज, तो 9 आएगा शायद से. सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी मिसफायर हो गया. नंबर 1, एज सानिध्य सेज दैट अगर 0 से 1 में देखें 2 रूट्स हैं एंड बाय ऑब्जर्वेशन देयर इज ऑलरेडी अ रूट 1.
और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देयर इज नो हार्म इन दिस. बाय ऑब्जर्वेशन x is equal to 1 is a root. If x is equal to 1 is a root, that means this equation now has 3 roots. 2 between 0 and 1, third is 1. Why 1 is a root? A minus b plus b minus c plus c minus a is 0. अब second degree के 3 roots तो हो नहीं सकते, तो we go by this statement. Any equation of degree n will have exactly n roots, but if it has n plus 1 or more roots, then it is an identity. That is, all ai's are equal to 0. एक आइडेंटिटी के सारे कोफिशिएंट 0 होते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली वे इट कैन हैपन टू बी 0. a1 a0 plus a1x plus a2x square and so on. So that way this becomes an identity, and you get that a minus b is equal to 0, that is a is equal to b, b minus c is equal to 0, that is b is equal to c, c minus a, that c is equal to a. But इतना सब करके भी सानिध्य, is this value coming out to be 9? So 3. a cube plus a cube plus a cube upon a cube. सानिध्य. यस सर, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन. हाँ, तो दिस इज रिस्की एट दिस स्टेज. ठीक है ना. लेट्स प्रोसीड. इसके बाद हमने किया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स. क्या नाम था थ्योरम का? Vieta's theorem. So how do we go ahead with this? Let me say there is an equation with a0 plus a1x plus a2x square. ध्यान से समझना, this is even true for complex numbers as well. an x to the power n is equal to 0 and has roots alpha 1, alpha 2, alpha 3, dot 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 alpha n. So if I go by this has roots alpha n, then by factor theorem जो 9th में पढ़ाई गई थी, we say that x minus alpha 1 is one of the factors of this equation. X minus alpha 2 would also be a factor because alpha 2 is a root. So likewise इस तरह से चलते हुए we get that the equation has factors x minus alpha 1, x minus alpha 2, dot 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 x minus alpha n is equal to 0. Comparing the coefficients after multiplying is mathematical induction. पहले 2 फिर 3 4. When you get the result, that result is basically the relationship between the coefficients and the roots. So we say that sum of roots alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 dot 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 alpha n is equal to, क्या आता है ये रूट का सम नितिन? अमन श्रीवास्तव. यस सर. इसका सम क्या आता है रूट्स का आफ्टर कंपेयरिंग दीज टू? minus a1 upon a0. माइनस a1 अपॉन a0 या माइनस an minus 1 अपॉन an? an minus 1. देखना पड़ेगा इसको ध्यान से, राइट. दिस बेसिकली इज टर्म्ड एज सम ऑफ रूट. सबको याद था ये? Yes, sir. When we compare the second coefficient, तो हमें मिलता है alpha 1, alpha 2 plus alpha 2, alpha 3 plus alpha 1, alpha 3 plus all possible pairs का sum. What is this value coming like, Nitin? No volume. Aman Gupta. Sir, an minus 2 upon an. Plus times an minus 2 upon an. हम इसे कहते हैं sum of product taken two at a time. Is that okay? ऐसे ही चलते रहेंगे alpha 1, alpha 2, alpha 3 plus all possible triplets.
would be minus an minus 3 upon an till the time product of a roots नहीं आ जाता. Product of the roots would be basically taken all at a time, which would be alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n. ये आना चाहिए a naught upon an either with a sign of plus or a minus, which can be controlled by minus 1 to the power. हाँ, power में क्या रहेगा, n या n plus 1? श्रुति. So n. n, क्योंकि क्वाड्रेटिक में प्लस में आता है. सो दिस इज येट अनदर थ्योरम विच इज वेरी पावरफुल रिजल्ट, जो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस में बहुत फ्रीक्वेंटली तुम्हारे जेई मेंस के क्वेश्चन में और एडवांस के क्वेश्चन में वर्क करेगा. द ओनली स्टार मार्क हियर इज दैट यू नीड टू टेक केयर, इज एप्लीकेबल ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रिमाइंडर थ्योरम वर्क करती है. तो अगर a1 a2 a3 कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स होते तो भी हम ये कहते कि ये होल्ड करता है ट्रू. देयर इज नो हार्म, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. इज दैट ओके? लेट्स डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस. थोड़ा इंपॉर्टेंट और वैसा टॉपिक है एंड देन वी विल प्रोसीड. ठीक है ना? लिखो, if 4x cube minus 3x minus p is equal to 0 and p belongs to minus 1 to 1, show that the equation has exactly one root in the interval half to 1. Hence identify that root. जेई का क्वेश्चन है. लेट्स गिव इट अ ट्राई. क्या था, कैसा था, एंड सी हाउ इट वर्क्स. यस, 2 मिनट्स टाइम एंड देन गिव इट अ ट्राई. फिर देखते हैं किससे हुआ किससे नहीं. पहले किया हुआ है ये. विक्रांत, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. How do we proceed with this? Vishnu? Aniket? Chirag? चिराग, एनी आइडिया कैसे होगा ये? हेलो. हाँ चिराग. सर पहले हम इसमें एक्स की वैल्यू हाफ डालेंगे, फिर उसके बाद 1 डाल के उसके निकालेंगे एफ उसकी हमारी इक्वेशन की. इसका कहने का मतलब ये है कि इफ वी वांट टू एंश्योर दैट हैज सम रूट, तो अगर हम कहते हैं कि एफ एक्स से, ध्यान से समझना जस्ट इन केस भूल गए हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन and f of k1 into f of k2 is less than 0, then the equation has exactly
एग्जैक्टली से बेटर वर्ड है. इक्वेशन हैज odd number of real roots. कहां पे? In the interval k1 to k2. Important statement polynomial equation का, although is dealt more in calculus than polynomial, because किसी भी continuous curve के लिए this becomes true, but as of now polynomial कर रहा है. गर्वित, what is the sense behind this statement? ऐसा क्यों रहा होगा? सर f of k into f of मतलब fk1 fk2 is less than 0 के पीछे. हाँ हाँ, कि ये अगर ऐसा है तो इनको हाउ कैन दे मेक दिस स्टेटमेंट दैट इफ f of k1 into f of k2 is less than 0, that simply means. सर ग्राफ से हाँ समझाओ, गिव मी सम इनसाइट. ठीक है, बिल्कुल सही है. ग्राफ से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो बहुत जरूरी है गर्वित कि एक्सप्लेन करें. वी शुड फ्रेम दो सेंटेंसेस, क्योंकि अगर हम वो नहीं करते हैं तो देन दिस बिकम्स अ वीक पॉइंट. इसका मतलब थिंग्स आर नॉट क्लियर. उसका स्टेटमेंट चलो एक किसी और से पूछते हैं, तब फिर हम बोलते हैं. अनन्या. यस सर. सर इसका मतलब ये है कि इफ at k1 and k2 the function has both positive or negative values, then their product would be greater than 0. But if at k1 or k2 one value is positive while the other is negative, then the graph would have definitely cut the axis at a point between k1 and k2. Right. Either one time or an odd number of times. Exactly odd number of times का रीजन यही है कि गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस ग्राफ एक बार विल डेफिनेटली कट द एक्स एक्सिस. नाउ इफ इट गोज बैक एंड कम्स लाइक दिस, so it will have to take two more cuts here, because turning back means एक तरफ इस पे कट करेगा. So the number of roots are either 1 or 3 or 5. You may say कि कल कुछ ऐसा हो सकता है that it goes and touches like this and then goes, but as long as it is a polynomial equation, this touch phenomena will be termed as a repeated root. याद आया कुछ quadratic की थ्योरी में? This would be termed as a repeated root. So total number of count of the roots is always odd. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, भूल चुके हो जस्ट इन केस नोट करके रखो, बहुत वैल्यूएबल है. f of k1 into f of k2 less than 0 है, then the equation has odd number of real roots in the interval k1 to k2. Is that clear to all? Yes, sir. Now, yes, sir. अगर मैं इतने को रिमूव कर दूं, बाय दैट लॉजिक, जो अभी थोड़ी देर पहले who was answering this? चिराग. चिराग. सो बाय दैट लॉजिक समझ ये आता है कि ओके, फेयर इनफ. इस इक्वेशन में लेट आई टेक दिस इक्वेशन एज fx. लेट मी टेक दिस एज fx. सो f of half into f of 1 की वैल्यू इफ आई फाइंड आउट, so f of half is 4 upon half का cube, that is 4 upon 8 minus 3 upon 2 minus p into f of 1 is 4 minus 3 minus p. Right? So if I look at this, this is half and this is basically minus times 1 plus p into 1 minus p. So this basically is p square minus 1. Now since p lies between minus 1 and 1, so p square minus 1 is negative. So that means your polynomial equation has odd number of roots. Degree क्या है उसकी? 3. So with a degree 3, if it has odd number of roots, so that means the root would be either 1 or 3. But ये कह रहे हैं कि 3 नहीं हो सकता, exactly 1 root है. Raise your hand जिनको click कर गया कि why it is exactly 1 root, not 3.
यश, you are in the class? हाथ उठाओ जिसको जिसको समझ आ गया। किसी को भी नहीं? Sir, Bit surprise, hand raise करो, there is an option there. अच्छा, there is one hand. विष्णु, चिराग, okay, विष्णु बोलो। विष्णु, you need to work on this microphone thing by next class so that बात कर पाए, ठीक है ना? चिराग, yes sir. Sir, like इसमें एक तो इसका रूट, इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा 0 हो जाएगा, and क्यों जीरो हो जाएगा? so because 0 satisfies the equation. कहाँ कर रहा सेटिस्फाई? So main equation को 0 satisfy कर रहा है। कहाँ कर रहा? दिखाओ मुझे, लेट मी ऑल्सो सी, मुझे तो नहीं दिख रहा। ओ एक सॉरी सर ये ग्राफ से नहीं देख सकते? एग्जैक्टली वन रूट, हाँ सर। एकदम सामने रखा हुआ, वन लाइनर लॉजिक। सर एग्जैक्टली वन रूट इन 1/2 से 1 ना? हाँ, अब तुम वन एग्जैक्टली वन की जगह यू हैव प्रूव्ड इट टू बी ऑड नंबर ऑफ रूट्स, सो ऑड नंबर ऑफ रूट्स मेक्स इट क्लियर, ओके द रूट्स आर ईदर 1 और 3, बट व्हाई नॉट 3, व्हाई ओनली 1? एक लाइन का आंसर बचा है बस, दैट्स देयर। और ये किया हुआ है, इट्स जस्ट दैट। अमन गुप्ता, इन क्लासेस में वॉट एवर पॉइंट्स आई मेक यू कि ये नोट करके रखना, मेक श्योर उसको बना के रखना, बिकॉज यही है जो प्रोमिनेंटली उस पर पिन करता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट। अमन, हाँ बोलो अमन। अमन श्रीवास्तव, इसमें x स्क्वायर की टर्म मिसिंग है। एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, इफ द सेकेंड लास्ट डिग्री इज मिसिंग, दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स इज 0। एम आई राइट गर्वित? यस सर। अब या तो एक रूट होता या 3 रूट होते, अगर तीनों रूट हाफ से 1 के बीच में होते तो उसका सम 0 नहीं हो सकता था, कंट्राडिक्शन। दैट मीन्स exactly one root lies in the interval half to 1, and that's done. So make certain habits. Number 1, if somebody says has so and so roots lying in the interval, so we will try f of k1 into f of k2 less than 0. Number 2, if in a polynomial equation of degree n, the second last term is missing of degree n minus 1, that's a clear indication that the sum of roots is 0. यूज हो ना हो दैट्स डिफरेंट, बट रजिस्टर करना चाहिए दैट वेरी मोमेंट कि ओके दिस इज मिसिंग, दैट मींस सम ऑफ रूट्स इज 0, सो 3 कैन नॉट बी देयर, सो ओनली 1 इज लेफ्ट। सेकंड पार्ट, हाँ कि -1/2 से 1/2 हुआ, ओके, -1/2 से 1/2 दिया हुआ हो अगर हमें इंटरवल, तो इसमें तो सम ऑफ रूट 3 तीनों के तीनों उसके अंदर आ जाए तब भी 0 हो सकता है उसके। और फिर ये पूछेंगे नहीं, दे विल आस्क यू समथिंग व्हिच हैज हैपेंड। भाई ये तो पर्टिकुलरली जेई ने फ्रेम किया क्वेश्चन विद अ पर्टिकुलर डेटा, सो इट मेक्स सेंस। कल अगर नेगेटिव में होता तो ऑफ कोर्स दिस अप्रोच फेल्स, फिर हम कोई दूसरी अप्रोच लगाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन तो सही है अगर है, पूछा है किसी ने। भाई वी स्टार्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ओनली विद द बिलीव दैट द क्वेश्चन इज करेक्ट, सो उस हिसाब से वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। कोई डाउट? Now the second part of the question remains, identify that root. Vatsal, how do we identify a root? Had it been quadratic तो solve कर दिया होता, cubic में कैसे identify करेंगे? Vatsal, you can hear me? Anurag? Yes, sir.
सर Yep. इसका मींस ये वाला फॉर्म हमें पता है कि सर मींस अगर x की वैल्यू अगर cos थीटा होगी तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। Absolutely. अगर ये quadratic होता तो we could have easily expressed x in terms of p, but इसको देख के समझो, if x belongs to half to 1 and x is in this form, so I can plug in x as cos theta. So this becomes 4 cos cube theta minus 3 cos theta is equal to p. ये किसका फॉर्मूला है श्रुति? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, ये किसका फॉर्मूला है? cos 3 थीटा। Cos 3 theta is equal to p. So 3 theta is equal to cos inverse of p. So theta is equal to cos inverse of p by 3. Again cos theta, that is your x, is equal to cos of cos inverse p by 3. So this is what they meant with identifying the root. Is this okay? So in theory of quadratic equation, we have very quickly seen the first three results: relation between root and coefficient, that is Vieta's theorem, sum of roots and product of roots, etc. The remainder theorem, the basics, how the results are established, and thereafter और क्या देखा आज? Roots का count का result. Up to this point, this is called as theory of polynomial equation. Although there are two important other results which you should be knowing, particularly for JEE Mains. पहला कि if all AIs are real numbers, then equation, अब हम इसको short notation में लिख देते हैं. This is how you should make notes also. Sigma AI x to the power I can take values from 0 to n. Automatically polynomial equation हो गई, is equal to 0 if has non-real roots, then they occur in conjugate pairs. That is, if 2 plus 3 iota is a root, then 2 minus 3 iota is also a root. पहले से पता था ये? Is this okay with everyone? Yes, sir. Right. Similarly, we say if all AIs are rational numbers, then the equation sigma AI x to the power I is equal to 0. Again, the polynomial equation. If has irrational roots, then they occur in conjugate pair. Is this okay? Yes, sir. Right. We will use this at a certain forum. That means 2 plus root 3 एक root है, तो 2 minus 2 root 3 भी एक root होगा. But up to this point, this is what we call as theory of polynomial equation, general polynomial. गर्वित यहाँ तक clear है? कोई ऐसी चीज which you have not seen earlier? नहीं सर, clear है. Now we proceed to the theory of quadratic equations and expressions. सबसे पहले quadratic equations में, that is degree 2 में, roots के structure को define कर लेते हैं. Already we have done it. This is basically a review, so we will do it a quick. Roots का मतलब either the roots are real or the roots are non-real, right? When the roots are real, either they are
equal or distinct. This is how we would term them. Apart from that, they may be further classified as rational or irrational. याद आ रहा है? And if they are rational, then they can be termed as integer or non-integer. Right? Within integer, it can be natural number, positive integer, even integer. That's not much of a thing to discuss because वो number theory में चला जाता है. Now let us first start with the first note. रूट्स के रियल और नॉन रियल होने को डिस्क्रिमिनेट करने वाला टर्म कौन सा है और क्यों? यस, अनन्या, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं दैट वेदर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल और नॉन रियल? वो सबसे पॉपुलर टर्म कौन सा है जो इस पे काम करते हैं जिससे हम discriminant d is less than 0, discriminant d is greater than or equal to 0, discriminant d is equal to 0 and discriminant d is greater than 0. essentially ये ट्री बन गया. अगर किसी ने तुम्हें बोला कि a particular quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has non-real roots, तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के अलावा that d is less than 0, what else do you gather from this? और क्या चीज इससे पता चलती गर्वित? रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे. एक की अगर होंगे तो रूट्स कॉन्जुगेट पेयर होंगे, ऑल्दो उसके लिए एबीसी रियल होना जरूरी है. तो यू कैन से दैट इफ एबीसी बिलोंग टू रियल देन रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर. ठीक है, टेकन. और सो दैट हम ये ट्री स्ट्रक्चर बनाए. नाउ द सेकंड राउंड व्हेन यू स्टडी, तो तुम्हें हर टॉपिक का पूरा माइंड में फ्लो चार्ट ऐसे बनाते रहना चाहिए कि इसमें और क्या क्या चीजें आ सकती हैं विच इज मिसिंग, ताकि हम उसको बार बार करते चलें. यस गर्वित, एनीथिंग एल्स? सर इक्वेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 फिर लेस देन 0 होगी डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ ए. साइन ऑफ ए, तो दैट मीन्स हमें पहले से पता है कि a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी irrespective of a is greater than 0 for all x belonging to R. ये पॉइंट समझ आया? इंपॉर्टेंट है. अगर किसी ने कह दिया कि रूट्स इमेजिनरी हैं तो दैट मीन्स पैराबोला का ग्राफ या तो ऐसा है या ऐसा है. उन बोथ केसेस इफ a is positive then ax square plus bx plus c is positive and if a is negative then ax square plus bx plus c is negative. तो दोनों ही केसेस में मिला के द प्रोडक्ट a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पॉजिटिव इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ x. इज दैट क्लियर? सिमिलरली रियल में वी अंडरस्टैंड दैट वैल्यू इज रियल एंड इक्वल. दैट मीन्स द ग्राफ इज लाइक दिस. सो दैट मीन्स a इंटू ए एक्स स्क्वायर plus bx plus c is greater than or equal to 0. It might go like this also. ठीक है? Now coming to rational roots, what is the condition for roots to be rational? Complete condition. Can anyone tell me that कि सर ये कर देंगे, this is the full and final complete condition for the roots to be rational, both the roots to be rational for a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. सर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए शायद. शायद नहीं, अब शायद की गुंजाइश कम है सानिध्य. ठीक है ना? टुडे इज द फर्स्ट क्लास. व्हेनेवर यू कम फॉर द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक, घर से पूरा होमवर्क करके सारे लोग बैठना.
इसका कहना यह है कि डिस्क्रिमिनेंट डी शुड बी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें कितनी गंभीर बातें हुई। फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर किसका? किसी भी रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। तो रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो बेसिकली 2 भी है, √2 का परफेक्ट स्क्वायर है। भाई रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो दुनिया का कोई भी नंबर हो जाएगा। √3 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 6√3 का। सर किसी भी इंटीजर का? इंटीजर का या रैशनल का? दिस इज द वे वी शुड डू। परफेक्शन एकदम जो बोलो, ना कम ना ज्यादा। एक ने बोला ज्यादा रियल नंबर सुपरसेट, दूसरे ने बोला इंटीजर सबसेट। whereas the correct wording is D is a perfect square of some rational number. क्या ये काफी है रूट्स के रैशनल होने के लिए, या देयर इज समथिंग एल्स व्हिच वाज देयर? इसमें मैंने d इक्वल टू 0 भी काउंट किया है। अब परफेक्ट स्क्वायर है तो काउंट करेंगे, बिकॉज D इज इक्वल टू 0 परफेक्ट स्क्वायर में तो आता ही है। यस। गर्वित, इज दिस डन या कुछ और भी है इसमें जोड़ने के लिए? है तो सही। क्या और क्यों? और वो नहीं याद आ रहा तो क्यों नहीं याद आ रहा? A, B, C should also belong to rational number. और ये भी ध्यान रखना, इट्स नॉट दैट कि रूट्स रैशनल है तो ऐसा होगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ऐसा है तो रूट्स रैशनल होंगे। व्हाई? बिकॉज वॉट एवर यू कॉल एज रूट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, it is minus b plus minus under root d, that is b square minus 4ac upon 2a. Now if a, b, c are rational, तो rational plus minus under root of d, अगर ये भी किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर होता तो रैशनल प्लस रैशनल अपॉन रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल अपॉन रैशनल वुड हैव बीन रैशनल। बट इन केस देयर इज अ सिचुएशन वहां पे ये आ जाता है कि roots are rational, then this is not the only condition. ये है तो roots rational हो गए। roots because I can take an equation x square minus 3x plus 2 is equal to 0. इसके दोनों roots rational हैं, 1 और 2 हमें दिख रहे हैं, और वो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा because it is obvious b square minus 4ac 1 हो गया, perfect square rational है। Now I change this equation to √2x square minus 3√2x plus 2√2 is equal to 0. As such, it is the same equation. But a, b, c तीनों में से कोई रैशनल नहीं है। b square minus 4ac रैशनल नहीं है, वो वैल्यू डबल आ जाएगी उसकी 2. So that means it is one way true. Likewise in integer, पहले रैशनल का कर लेते हैं, प्रॉब्लम रिकॉल करा देते हैं। That means अगर प्रॉब्लम में कभी आता है that the roots are rational, so this is not what you should depend upon, because ये है तो रैशनल है, रैशनल है तो ये जरूरी नहीं है। That means essentially questions which involve the roots rational and integer, they are not the questions जो तुम्हें दिखाया गया, ये कुछ और क्वेश्चन है। इंटीजर में we say if a is equal to 1, b comma c belong to integer, d is a perfect square of some k and that k also belongs to integer, then roots are basically integer. उल्टा तो ट्रू हो ही नहीं सकता क्योंकि लाइव एग्जांपल यहीं पे सामने है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये क्यों ट्रू है, तो अगेन वी गो बाय द सेम रिजल्ट, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू तो हमने लिखी दिया कि 1 होनी चाहिए, सो लेट मी कॉल इट एज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a इज 1। अब if b square minus 4c is a perfect square of integer k square, तो वैल्यू तो यहाँ प्लस माइनस k ही हो जाएगी, so that's not a challenge. Integer plus integer upon 2 is not always integer. उसके लिए जरूरी है कि integer plus integer न्यूमरेटर वाला integer should be even. So now I take case wise. 4c it is hardly matter because integer into 4 is always even. फर्क किससे पड़ता है? b स्क्वायर से। तो if b is even, b का स्क्वायर is even, b square minus 4 is 4c, even minus even is even, so that means अगर perfect square है तो k would be even, even plus even is even,
even minus even is even. Done. Integer होगा. If b is odd, b square is odd, b square minus 4c is odd minus even, that is odd. Odd का under root, if it is a perfect square, it is odd. Odd plus odd is even, odd minus odd is even. But ये one way track पे true हैं. The results or the questions which belong to the integer roots and rational roots are not to be solved this way. एक दो क्वेश्चन करके रिकॉल कराते हैं so that तुम्हें याद आए कि क्या पहले किया था. How do we deal problems of integral roots and all, right? पहला क्वेश्चन, find all integral values of a, find all integral values of a such that x minus a into x minus 1 plus 17 is equal to 0. कर डालो जरा फॉर सारे लोग, फिर मैं जिससे पूछूं वो हाथ उठाएगा. हाथ उठाना, आई आस्क क्विकली, 1 मिनट का टाइम लेके. इन दिस रैंक बूस्टर क्लासेस हम ज्यादातर काम थ्योरी का करेंगे. वी विल नॉट वेट मच फॉर प्रॉब्लम्स एंड ऑल, बिकॉज सारी चीजें वी वांट टू रन थ्रू इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. जिसको लग रहा है कि उससे हो जाए, जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन सी कि तुमको पूछना है कि नहीं पूछना. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट नहीं है. हाँ, गुड. हैज इंटीग्रल रूट्स. अब करो. आई थॉट मैंने बोल दिया. यस. Those who have joined using some mobile symptomic name like G6, J7, तो वो टाइम रहते अगली क्लास में उसको अपने नाम से सेव कर लेना, so that I can see कि who all are attending the class. Accordingly हम सवाल पूछ लेंगे. ठीक है ना? All you need to do, ज्वाइन करने से ठीक 1 मिनट पहले it asks on the Zoom कि तुमको अपना नाम चेंज करना है. राइट क्लिक छोटा सा, you can do that there. Who is J6? Yes. अनिकेत. यस सर. कैसे करेंगे बच्चे इसको? सर डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर. फंस जाएंगे. ये सब कर रखा है पहले बहुत, इसलिए बहुत क्विक रिव्यू करा रहे हैं. सारी चीजें जो आज कराएं, पुराने क्वेश्चंस मॉड्यूल्स निकाल के सारे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करके, सो दैट देयर इज नो लूप होल इन दिस चैप्टर. 2 classes and theory of quadratic would be all under control, should be. गर्वित. सर 1 मिनट ले लीजिए. हैंड रेज करो जिसको लग रहा है कि उसको रिकॉर्ड है पहले से कि कैसे करना है इसको, या अभी समझ आया है कुछ करने लायक. चिराग.
उसे कर रहा हूँ 1 मिनट। अगर तुम लोग कर रहे हो तो तुम पक्का फंसने वाले हो, बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू इन दिस। जैसे ही इंटीग्रल रूट्स के क्वेश्चन आए, मेक इट अ वर्किंग रूल। जो तुम्हें दिखाया गया है इट इज नॉट डायरेक्टली एज सच, इसमें कुछ डिफरेंट वो है, और वो क्या है वो तुम्हें समझना है। दैट इज हाउ इट हैज टू बी अंडरस्टूड। नाउ हाउ वी अटेम्प्ट सच क्वेश्चन। हमें ये लगता है कि +17 करने की क्या जरूरत थी, क्या इनको मतलब मल्टीप्लाई करके लिखने नहीं आता? कहीं ऐसा ना हो कि द बेटर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इज दिस। नाउ integral roots means x is an integer and all integral values of a, that means a is an integer. integer into integer -17 कितनी तरह से हो सकता है? how many ways do you know? सर 4 17 into -1 -1 into 17 -17 into 1 and 17, sorry, 1 into -17, that's it. एक एक को सॉल्व कर लो। when x minus 1 is -1 so x is 0, when x is 0 so a is -17। पहला पार्ट हो गया, डन। when x minus 1 is 17 so x is 18, x is 18 so 18 minus a is equal to -1 so a is equal to what? 19। am I right? x minus 1 is equal to 1 so x is equal to 2, 2 minus a is equal to -17 so that means a is 19, -17 so it is -16, so -16 minus a is equal to minus these two values and hence 2. it has to do nothing with the theory of equation roots and all. ऐसा ना हो कि तुम्हारा क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है, तुम डिस्क्रिमिनेंट डी वैल्यूज निकालने में लग जाओ और उसका एक्चुअल वर्किंग से कोई खास लेना देना ना हो। सो व्हेन वी डू दिस रैपिड रिवीजन और रैंक बूस्टर काइंड ऑफ सेकंड टाइम ऑफ वर्किंग, तो इसमें तुम्हें अपना कॉम्पेंडियम ऑफ अप्रोचेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाना होता है, सो दैट क्वेश्चन देख के सारे आइडियाज में से जो राइट स्ट्राइक करना वो करे। इट इज नॉट समथिंग जो अगर अभी तक नहीं हुआ है तो क्या करोगे, यू विल मेक इट बाय फोर्स। एम आई राइट? क्लियर हुआ ये सबको? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन ठीक इसी तरह से थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना अब तक पढ़ा है उस पर ट्राई करो एंड अगेन सी हाउ क्वेश्चन चेंज कलर। इफ x minus a into x minus c plus lambda times x minus b into x minus d is equal to 0 has both roots real and distinct. Find lambda given that a is greater than b is greater than c is greater than d. करो again 2 minutes and then we will discuss this thing. कोई होप? हाँ सर, 1 मिनट ले लीजिए। ओके
एनीवन एल्स? बाकियों का ये किया हुआ है? गर्वित? एक मिनट सर। अनुराग? सर जस्ट अ मिनट सर, एक सेकेंड। डिस्क्रिमिनेंट डी निकला? या नहीं निकला? विक्रांत? वत्सल? सर अभी नहीं हुआ। निहारिका? इज शी इन द क्लास? पाखी? माइक्रोफोन है रेडी? जतिन? जिस तरह से तुम ट्राई कर रहे हो इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। पहली चीज फौरन समझ जाओ, तुम डिस्क्रिमिनेंट का कोई भी रिजल्ट अप्लाई करोगे, हाउ विल यू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू दैट? सर मैंने दूसरे ढंग से किया। मैंने पहले एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी निकाल दिया। गुड, तो फिर तो अब तक हो जाना चाहिए था। लेट मी कॉल दिस एज एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी। हाँ गर्वित? सर इसमें ए डाल दिया पहले। एफ ऑफ ए निकाला तुमने, ये पूरा जीरो हो गया, ये हो गया लैम्डा टाइम्स। हालांकि तुम ए निकाल रहे हो, आई वुड हैव रिकमेंडेड और 2 स्टेप कम कर लो। एफ ऑफ ए के बजाय एफ ऑफ बी निकालो। दिस होल वैल्यू जीरो। आधे निकाल लिए थे। हाँ, एफ ऑफ बी ठीक है, मतलब सारे ही निकालोगे इफ यू डू नॉट नो इट, ये आ जाएगा। और एफ ऑफ डी निकालोगे तो दिस अगेन गोज जीरो, सो दिस कम्स आउट टू बी d minus a into d minus c. Is this okay? अब f of b की वैल्यू के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कंसिडरिंग दिस गिवन? नेगेटिव हो गई। नेगेटिव हो जाएगी। और f of d के बारे में क्या कंसिडर कर सकते हैं कंसिडरिंग दिस इज गिवन? पॉजिटिव होगा। अब a is bigger than b is bigger than c is bigger than d दिया हुआ है, और f of b बेसिकली अगर नेगेटिव आ रहा है और d पॉजिटिव आ रहा है, तो d से b के बीच में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो रियल होगा ही होगा, दूसरा अकेला इमेजिनरी हो नहीं सकता। आज का पहला रिजल्ट वुड अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, सो दैट मीन्स रूट्स आर ऑलवेज रियल irrespective of lambda। तो फाइनल आंसर क्या हुआ सानिध्य? जब लैम्डा से फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि एफ ऑफ बी हमेशा नेगेटिव आएगा, एफ ऑफ डी हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव एक रूट रियल होगा, दूसरा अकेला इमेजिनरी हो नहीं सकता, तो दूसरा रूट भी रियल होगा, और दोनों टच कर नहीं सकते, तो वो या तो ऐसे गया होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट में, या ऐसे गया होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट में, दो में एक ही तरीके से गया होगा, तो रियल और डिस्टिंक्ट ही होंगे, लैम्डा से आजाद है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर सानिध्य? ट्रू। अरे ट्रू थोड़ा ही, लैम्डा की रेंज बतानी है, फाइंड लैम्डा। What is the final answer, Chirag?
सर रियल हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल। All real numbers. What is the final answer, Garvit? ऑल रियल नंबर्स। अगर ये हुआ तो तुम फंसे, बिकॉज ये जेई में हमेशा ध्यान देने की चीज है। फिर ध्यान से पढ़ो। इफ दिस इक्वेशन हैज बोथ रियल रूट्स, दैट मीन्स इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि दो रियल रूट्स हैं। लैम्डा की वैल्यू -1 पे this x square gets cancelled with x square and it becomes one root. होगा वो भी real, independent है, but it is no more two distinct both real roots. Both real roots and distinct, that means root का दो होना तो जरूरी है, तो lambda की वैल्यू -1 हटेगी यहां से. This is your full and final complete answer. Is this okay? ये भी ध्यान रखना इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इट कैन बी रिस्की. थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, सिंस दिस इज लाइक रिव्यू क्लास कंप्लीटली. अभी तक जितना देखा हमने बेसिक क्वाड्रेटिक, उसके बाद अब क्वाड्रेटिक में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक को इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है ना? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. So we are trying to solve ax square plus bx plus c is equal to 0. Since it is an equation, अभी inequality पे नहीं गए, inequality पे कल की क्लास में जाएंगे. So equation में we assume कि quadratic की बात कर रहे हैं, तो understood सी बात है a नॉन जीरो होगा. a जीरो होता तो quadratic नहीं होगी. तो इसको a से पूरी equation को डिवाइड कर दो. x square plus b by ax plus c by a is equal to 0 is your quadratic equation. इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं सो दैट हमारा एफर्ट आधा रह जाएगा एज कंपेयर टू ए के नेगेटिव होने का. तो वी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए. जब 0 से इक्वेट करेंगे वी विल सी टू इट. अब ये तो हमेशा एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा. डिपेंडिंग अपॉन डिस्क्रिमिनेंट, द पैराबोला वुड ईदर टच द एक्स एक्सिस, कट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और गो अबव दिस थिंग. दिस इज द सिचुएशन व्हेन d is greater than 0, this is less than 0 rather, this is d is equal to 0 and this is d greater than. How do we arrive at this? तो बेसिकली इस पैराबोला का वर्टेक्स इन एनी पॉसिबिलिटीज निकालते हैं. तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर -b/2a. -b/2a. तो x कोऑर्डिनेट हो गया. y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -d/4a. इज दैट ओके? यस सर. और क्योंकि ये नेगेटिव है, तो बेसिकली ये तब है जब हम इसको इस तरह से नहीं डील करते हैं, राइट? मतलब इनिशियली, ये तो बाद में हम कर देते हैं सो दैट अपना बर्डन हाफ रहे, बट लेट अस इनिशियली अज्यूम कि वी टेक दिस एज दिस. तो व्हेन a इज पॉजिटिव, दिस इज द केस, a इज नेगेटिव, तीनों इन्वर्ट हो जाते हैं. अल्टीमेटली these two results are obtained, या these three results are obtained by the position of vertex, the y coordinate below or above the x axis. Is that okay? बट सोच ये कहती कि क्या इतनी सी बात के लिए इतना सब किया? ये तो हमें डिस्क्रिमिनेंट डी से वैसे भी पता था. तो इफ आई सॉल्व अ प्रॉब्लम ग्राफिकली, व्हाट इज द बिग डील? ये तो हमें ऐसे ही दिख जाता. तो चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं विच वी विल ट्राई विद ग्राफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड देन अंडरस्टैंड. म्यूट कर लो जिसका भी ये है, अनम्यूट पे है भी. इफ ax square plus bx plus 5 is equal to 0 does not have distinct real roots, find the least value of a minus b. निकालो.
हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कि ये क्या पूछ रहे हैं? रेज योर हैंड्स जिनको समझ आ गया है। ओनली 1 2 3। आशीष क्या नहीं समझ में आया इसमें? अनुराग यस सर। क्या नहीं समझ में आया इसमें? If this equation does not have distinct real roots, इसका मतलब ये हो गया the equation can have a real or equal roots but not distinct or imaginary roots. Am I right? So that means either d is less than 0 when the roots are imaginary, or d is equal to 0 when the roots are equal. But वो तीसरा केस have two distinct real roots होने हैं. But हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि whether it was an upward parabola or a downward parabola. Downward parabola होता तो this could have gone like this also. तब भी d less than 0 होता, तब भी d equal to 0 होता. अब कैसे प्रोसीड करें? कैन यू फिगर आउट कि इस इक्वेशन में a पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इज देयर एनी हिंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट गिवन अराउंड दिस थिंग कि जो a है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर f0 निकाल लेंगे ना? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो कह रहे हैं या तो ये हमेशा ऐसा है या हमेशा ऐसा है. सो इफ यू टेक f of 0 इट कम्स आउट टू बी 5. तो अगर f of 0 5 है और ऐसा होता तो ये हो नहीं सकता था, या ऐसा होता तो f of 0 5 आ नहीं सकता था, यानी हो ना हो दिस इज ट्रू. इफ दिस इज ट्रू, ये सबको क्लियर हुआ कि f of 0 is positive and fx is either all the time greater than equal to 0 combining these two, या fx is all the time less than equal to 0 combining these two. बट क्योंकि f of 0 5 है तो ये हो नहीं सकता, हो ना हो यही ट्रू रहा होगा. एंड दिस इज द केस. तो हमारे को एक एस्टैब्लिश्ड रिजल्ट तो मिला कि सिंस द कांस्टेंट वैल्यू इज 5 and the expression is all the time either non-negative or non-positive, so the final outcome is let it be non-negative because f of 0 is 5. So ax square plus bx plus 5 is greater than equal to 0 for all x. But तुम्हारा क्वेश्चन तो पॉजिटिव नेगेटिव का ही नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन तो 2a minus b की मिनिमम वैल्यू का. हाउ डू यू रीच टू दैट वैल्यू? सर इसके बाद तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया. इसके बाद कुछ तो निकालने की डेरिवेटिव जरूरत ले लिया था. वही इफ यू नो बिग थिंग्स यू विल अप्लाई, तो तुम फंसोगे. व्हाट यू शुड हैव डन आफ्टर दिस इज अ वन लाइनर थिंग. जब हर x के लिए ट्रू है तो देखो 2a माइनस बी कैसे बनता है. पुट x इज इक्वल टू -2, दैट्स इट. 4a minus 2b is greater than equal to -5. 2a minus b is greater than equal to -5 by 2. लीस्ट वैल्यू. हाँ सर आया तो यही है. आया तो यही है. डिस्क्रिमिनेंट से भी आता है, बट दिस इज हाउ पीपल फ्रेम क्वेश्चन. तो ग्राफ में पहली चीज ध्यान रखना, ग्राफ इज नॉट अबाउट दोज पॉइंट्स जहां पे एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव होके कट कर रहा है. इट इज मोर अबाउट द होल एक्सप्रेशन कि कितनी दूर तक पॉजिटिव है, कहां से कहां तक नेगेटिव है, कैसे वर्क करता है. क्लियर हुआ सबको ये?
इस किस्म के छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डोमेन में, इस टॉपिक में बनते हैं। एक और करके देखते हैं इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, थोड़ा सा इनपुट और आगे बढ़ाते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑल्दो अगली क्लास इसको ग्राफ से भी देखेंगे, बट रूट्स का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, और ये बहुत उस पे चला जाता है कि कब दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, कब दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। तो आई से दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए इज नोन टू मी, अल्फा बीटा इज सी बाई ए इज नोन टू मी। नाउ इफ आई से दैट बोथ द रूट्स, एक पूरा वो बना लेते हैं चार्ट सा, yeah, this much is okay for us to deal with, ठीक है ना। ए बी सी एज एन क्वाड्रेटिक के तीनों कोफिशिएंट्स और डी एज एन डिस्क्रिमिनेंट। पहले लेते हैं बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव की कंडीशन। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो क्या हुआ होगा? अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव, अल्फा बीटा भी पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव, तो दैट मींस अल्फा बीटा प्रोडक्ट पॉजिटिव, या दैट मींस सी एंड ए आर ऑफ सेम साइन। So either C and A are both positive or C and A are both negative. Alpha plus beta is positive, that means minus B by A is positive. Minus B by A is positive, that means B by A is negative. B by A is negative, that means this has the opposite sign. So that means दोनों रूट पॉजिटिव होने के लिए एक इनका A और C का साइन सेम होना चाहिए और B का अपोजिट होना चाहिए। And of course, what can we say about discriminant D? D should be greater than or equal to 0. It can be equal to 0. दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो दे कैन बी 6 and 6 इक्वल, दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो दे कैन बी -5 इक्वल। A, B, C, D, the conditions for both roots to be positive. अगर दोनों रूट्स नेगेटिव की कंडीशन लिखते अनुराग तो क्या आती, क्विकली बताओ। सर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ए की वैल्यू। ए बी सी आर ऑफ सेम साइन, ऐसे बोलो और याद रखो ताकि एग्जाम में अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा इज सी बाई ए, दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, बट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज नेगेटिव। सो माइनस बी बाई ए इज नेगेटिव, दैट मीन बी बाई ए इज पॉजिटिव। बी बाई ए इज पॉजिटिव, सी बाई ए इज पॉजिटिव, तो दैट मीन्स जो बी का साइन है वही ए का साइन है, जो सी का साइन है वही ए का साइन है। इसका मतलब तीनों का साइन सेम है। Is this clear? Yes sir. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, गर्वित क्या चेंज करें कंडीशन में? सर अगर ए हो गया पॉजिटिव, सर एक्चुअली इसमें ए और सी का ही तो हम फिर बता सकते हैं। एब्सोल्युटली, ए और सी का ही बताएंगे, बी से वो इंडिपेंडेंट है। बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मतलब द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। द प्रोडक्ट इज नेगेटिव इज ओके, सम यू कैनॉट डिटरमाइन, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बस सी और ए का साइन अपोजिट होना चाहिए। डी के ऊपर क्या कंडीशन रहेगी? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि अब इक्वल टू 0 का कोई स्कोप नहीं बचा, बिकॉज both the roots are opposite in sign, so they cannot be equal. And even more importantly, ध्यान रखना, ये redundant condition है, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने C और A का साइन अपोजिट कर दिया, D ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 हो गया। D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, पॉजिटिव माइनस AC इज नेगेटिव इज पॉजिटिव। अदरवाइज ऑल्सो अगर एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया था, पॉजिटिव से नेगेटिव होने का मतलब अगर हमने लिखा है कि एक रूट पॉजिटिव ले रहे हैं और एक रूट नेगेटिव ले रहे हैं, तो सी और ए का साइन अपोजिट होना चाहिए। सी और ए का साइन अपोजिट हो गया
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव हो गया, या इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के नेगेटिव होने से हम ये कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि डी ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बिकॉज अगर रूट्स इमेजिनरी होते तो कॉन्जुगेट पेयर में होते, कॉन्जुगेट पेयर में होते तो p प्लस आई क्यू इंटू पी माइनस आई क्यू मॉडुलस ऑफ p का होल स्क्वायर होता, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो ये तुम लगाओ या ना लगाओ रिजल्ट सेम आएगा। सो द ओनली कंडीशन इज दैट c बाई ए नेगेटिव लगा दो, इसको करके भी वही रिजल्ट आएगा बट विल टेक अननेसेसरी ऑफ योर टाइम। क्लियर हुई यहां तक बात? यस यस सर। सर। अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कई बार थोड़ा सा स्मार्ट एंगल आता है। पहले एक डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर एक उसका देखते हैं। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 माइनस a टाइम्स x प्लस a इज इक्वल टू 0 आर both negative, find a range of A quickly. अनन्या, अमन, तो बताऊं मैं? हाँ बोलो। 0 to 3 कैसे आया वो समझाओ, क्यों आया? सर नेगेटिव है तो ए बी सी का साइन सेम होता है। हाँ सो एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा है वो 1 है, ठीक है, विच तो इज ग्रेटर 3 देन 0। माइनस ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो तुम भूल गए कि नेगेटिव के लिए उसका रियल होना भी जरूरी है। नॉन रियल रूट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये चैलेंज है। तुम इसको रखोगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके 0 to 3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब जरा इसकी कंडीशन लगाओ, इसकी कंडीशन लगाओगे 3 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच मीन्स ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 4a माइनस 10a प्लस 9 is greater than equal to 0, which means a minus 1 into a minus 9 is greater than equal to 0, and this do not intersect. A minus 1 into a minus 9 is greater than equal to 0. That means this is basically 9 or ahead or 1 or below, and 0 to 3 is somewhat like this. Okay, there is a small piece of intersection. So the final answer should be open 0 to open closed 1. Am I right? यस सर। Yeah. So ऐसे छोटे छोटे हैं, तो इसलिए वो चार्ट जो बनवाया है ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई भी चीज मिस ना हो। डोंट जंप टू एनीथिंग बिकॉज जेई है, वन स्लाइट एरर विल कॉस्ट यू अ लॉट। तो ऑल यू नीड टू डू कि ये जो बना रहे हैं इसको कॉपी पे बना के कॉम्पेंडियम ऑफ फॉर्मूले की तरह इसको सामने रख के देन सॉल्व प्रॉब्लम। जो चीज है करनी है वो करनी, और जो नहीं करनी वो नहीं करनी। बट अगर हम एक भी स्टेप आगे पीछे खुद से करते हैं तो एग्जाम हॉल में वी विल फील दैट हमने अपना काम कंप्लीट किया है। जो बताया था तीनों का साइन सेम होगा, तो या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे, वी हैव डन इट। या तो तीनों पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का को, बट एक पार्ट मिस हो गया, यू गेट अ रॉन्ग आंसर एंड दैट रॉन्ग आंसर इज फ्लैश्ड इन वन ऑफ द ऑप्शंस एंड यू आर फिनिश्ड। इज दैट क्लियर? यस सर। एक और
both roots of equation ax square plus 3x plus 1 minus a is equal to 0 are positive, then a belongs to yep. हाँ, निकालो quickly. Probably the last question for today. हाँ, हो रहा है? यस सर, एक मिनट. Next class we will take up condition for roots to lie between values और वो inequalities का part, and that would be full in quadratic. Wavy curve method, if you want, I can take it offline. इतने से तुम्हारा complete working हो जाएगी, and you will have problems to solve. For JEE Mains, JEE Advanced, you may still take quadratic inequality at a higher level at a later stage. खाली वही रह जाता है. So the graphical approach to location of roots वगैरह वगैरह and comparison we will take up in the next class. कोई स्कोप लगा इसमें होने का? Both roots are positive. Since B is positive, so that means A and C should have opposite sign. So A is negative and 1 minus A is also negative. Sir, 5 is the answer. And discriminant D is greater than equal to 0. क्या रहा 5? Yes, sir, 5. Yes, sir. That's it. Okay, कोई दिक्कत नहीं. Can be done. Okay. There would be boomerang questions also, जो theory of quadratic के नाम पे आएंगे. You might get in trap और दिक्कत दे सकते हैं. For example, under root of x minus 1 plus under root of 5 minus x is equal to 0 is a valid question. But अगर हम यही दे देते हैं is equal to 7, under root of x minus 5 plus under root of 1 minus x is equal to 7. So this basically is an oral objective question. Solve for x. And this is a decent question of quadratic. फर्क बताओ दोनों में क्या है? Quickly. And then we will quit. ध्यान रखना quit करने पे you will have to finish this meeting, close, and then the next meeting जो chemistry की सर start करेंगे उसे join करना है.
सो दैट रिकॉर्डिंग सेपरेट हो जाए। अगर इसी में करेंगे तो एक ही कंटिन्यूड रिकॉर्डिंग रह जाएगी क्लास की, सो वी विल नॉट डू दैट। In this particular question, if we take x is greater than equal to 1 for this to be in the domain and x is less than equal to 5, so simultaneously some x greater than equal to 1 and less than 5 makes sense. So it is a question, you have to solve it. But here the answer is orally directly 5, because for this to be defined, root third to be defined, x should be greater than equal to 5, and for this to be defined, x should be less than equal to 1. You cannot have an x which is greater than equal to 5 and less than 1. So iska solution you could have given orally, x belongs to 5. Is that clear? So इस तरह से भी बीच बीच में होगा, just be alert, aware on this fact. कोई doubt, query, confusion? Fair enough. I'm closing this class, this meeting for now. जो तुम्हें link भेजा, the same link, but once I close this, it's done. Another one will start and you will take up the next subject in that meeting, so that recordings automatically separate हो जाए, otherwise वो एक ही flow में चलती चली जाए। Link same रहेगा, password same रहेगा, so there is no challenge as such. So you can quickly leave this